Hello students, welcome back to third video lectures of Boolean logic. In this chapter, students, we had also discussed about in previous class a development of Boolean logic, binaries, valued quantities, and also discussed about logical operations. In logical operations, we had also discussed about the logical functions or a compound statement. And second logical operator, in logical operations are logical operators. In logical operators are the three types of operators like a AND operator, OR operator and NOR operator. And in logical operations is the third part of our evolutions of a Boolean expressions using truth tables. We have also discussed this topic. Now we will go to the next slide. In this slide, students, we had also discussed about in previous lectures basic logic gate. In basic logic gate, it's three types of a logic gate: inverter, you can say a NOT gate, second OR gate, third NAND gate. And then next topic we had also discussed about a basic postulate of Boolean logic, principle of a duality, basic theorem of Boolean algebra or a logic. In this basic theorems of a Boolean algebra, we had also discussed about the properties of a 0 and 1. In the idempotency law, involution, complementary law, commutative law, associative law, distributive law, and absorption law. So, students, in previous topics we had also discussed. Our last topic is the absorption law. Today is the first topic is the De Morgan's theorem. We will discuss in this video about the De Morgan's theorem. What is the De Morgan's theorem? Students, अगर De Morgan's theorem की बात करते हैं तो one of the most popular identifies या identities used in Boolean logic is De Morgan's theorem. Means अगर हम most powerful equations की बात करते हैं या Boolean logic की बात करते हैं तो वो हमारा De Morgan's theorem होता है. इससे जो डेवलपर थे इनके ऑगस्टस डी मॉर्गन थे had paved the way to Boolean logic by discovering these two important theorems. मीन्स उन्होंने क्या किया कि ऑगस्टस ने ये Boolean logic के थ्रू उन्होंने टू रूल्स बनाया, टू इम्पोर्टेंट थ्योरम्स बनाया जो कि आपके जो थ्योरम थे जो टू थे वो आपके डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम था एंड सेकंड आपका था डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम. तो वी विल डिस्कस अबाउट डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम. In this theorem, students, De Morgan's according, the first theorem is the complement of A plus B is equal to the complement of A plus B equal to the multiplication of A complement into B complement. Multiplication of A complement and B complement. तो स्टूडेंट्स जो De Morgan के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लॉ था आपका कि जो भी आपका जो पहला फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग कि A प्लस B का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है. एंड अगर हम सेकंड थ्योरम की बात करते हैं तो सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इसका रूल होता है कि जो A और B के मल्टीप्लिकेशन का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट के सम के इक्वल होता है. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम क्या होता है ये आपको पता हो गया है. अब चलते हैं इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं. फर्स्ट प्रूफ करेंगे कि फर्स्ट थ्योरम कैसे क्या होता है उसको डिटेल देखेंगे उसको प्रूफ के साथ. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और फिर वहां पर हम इसके प्रूफ को देखते हैं. तो हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट कि टू प्रूव कॉम्प्लीमेंट ऑफ A plus B is equal to
ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं स्टूडेंट, तो आपका क्या होता है, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट जो होता है आपके 1 के इक्वल टू होता है, और जो किसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 के इक्वल टू होता है। तो अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लॉ स्टूडेंट, अगर हम इस वेरिएबल और इस वेरिएबल को इस रूल के अकॉर्डिंग प्रूव कर देते हैं, इन दोनों के रूल के अकॉर्डिंग, तो आपका फर्स्ट जो थ्योरम है आपका डिमॉर्गन फर्स्ट थ्योरम, वो आपका प्रूफ हो जाएगा। कैसे? जैसे वहां पर क्या है आपका a प्लस बी एंड प्लस, अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट है तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या आपका a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट है, इक्वल टू किसके होगा 1। अगर ये प्रूफ हो जाता है 1 के इक्वल है, तो आपका जो फर्स्ट थ्योरम आपका है वो भी प्रूफ हो जाएगा। कैसे देखिए, देखते हैं इसको हम। तो स्टूडेंट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम जो हमारा थ्योरम होता है कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं, तो जो हमारा जो एक्स होता है अगर किसी अनदर वर्ब में मल्टीप्लाई होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो इसमें साइन का ध्यान रखते हैं कि जो साइन है वो हमेशा साथ में रहता है। जैसे ये अगर हम यहाँ पे a प्लस बी का इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं a कॉम्प्लीमेंट साथ, तो ये क्या होगा, प्लस a कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब यहाँ पे इंटू का साइन, यहाँ पे इंटू का साइन हो जाएगा। अब जब दूसरा मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी के साथ, तो यहाँ पे प्लस b कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम a प्लस a कॉम्प्लीमेंट करते तो क्या होती है, वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा 1 प्लस b हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे अगर हम करेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस a हो जाएगा। अब 1 प्लस a b की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 प्लस a की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया ये 1, तो दोनों क्या हो गया 1 के इक्वल हो गया। मीन्स इससे क्या है कि ये जो थ्योरम आपका है कॉम्प्लीमेंट्री का, डिमॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम, वो भी प्रूफ होता है। अगर इसी को हम सेकंड केस के अकॉर्डिंग देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन अगर हम इसको करते हैं कि a प्लस b इंटू a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो साइन है वो हमेशा साइन साथ साथ में रहेगा, तभी वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो, क्योंकि ये आपका प्लस प्लस में इधर था तो इस साइड से मल्टीप्लाई किए। अब आप देखो यहाँ पे इंटू है, इंटू बीच में है, हम किस साइड से करेंगे, हम राइट साइड से लेंगे, लेफ्ट की ओर आएंगे। तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब a डॉट b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये डॉट साथ में आएगा, a डॉट फिर a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, फिर ये बीच में आपका प्लस हो, यहाँ प्लस आ जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट डॉट b। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपका रूट होता है कि a कॉम्प्लीमेंट डॉट a कॉम्प्लीमेंट 0 इक्वल होता है, तो यहाँ पर भी 0 डॉट b हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे b इंटू b कॉम्प्लीमेंट है, तो ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, तो a कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा आपका। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा आपका 0 हो जाएगा। तो दोनों के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट जो थ्योरम होता है डिमॉर्गन का, वो आपका प्रूफ हो जाता है। सेम इसी प्रोसेस में अगर हम जाते सेकंड थ्योरम की बात करते हैं, जो सेकंड थ्योरम था आपका डिमॉर्गन का स्टूडेंट, चलिए उसको हम भी देख लेते हैं। जो सेकंड आपका था स्टूडेंट कि आपका जो a और b का जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट के सम के इक्वल होता है। तो इसको भी हम कॉम्प्लीमेंट्री लॉ के अकॉर्डिंग हम इसे प्रूफ करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या था आपका कि अगर हम कोई भी वेरिएबल है उसके कॉम्प्लीमेंट का प्लस करते हैं तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा, और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0 आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था a प्लस अगर हम a कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट 1 आएगा, और इसी के कॉम्प्लीमेंट का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए इन दोनों वेरिएबल को लेते हैं हम और इसको हम प्रूफ करते हैं। तो पहला हमारा क्या था, a डॉट b था, एक ये वेरिएबल आएगा यहाँ पर, और इसके कॉम्प्लीमेंट वो लेंगे हम यहाँ पर स्मॉल में a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। ये पहला फेज हो जाएगा। जब सेकंड करेंगे तो सेकंड में क्या हो जाएगा आपका a डॉट a
डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट स्मॉल में। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लेंगे। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप प्लस का प्लस के साथ रखते हैं तो ये क्या जाएगा, इसका इसके साथ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका प्लस प्लस साइन इधर है तो आप इस साइड से मल्टीप्लाई करोगे, और इनटू का साइन इधर है तो उस साइड से मल्टीप्लाई करोगे। सारे इधर से आप करोगे आप अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल होता है किसी में मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये बीच में साइन प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के साथ ये मल्टीप्लाई मतलब हो जाएगा। फिर यहाँ पे डॉट बीच में है, आप सेकंड करेंगे, हम यहाँ पर बी को लेकर जाएंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 के। अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो कि वैल्यू दोनों क्या होती है 1 के बराबर होती है, तो रिजल्ट हमारा 1 के बराबर होती है। ये प्रूफ हो जाता है आपका 1 इक्वल टू 1 LHS इक्वल टू R है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये कि सेकेंड थ्योरम भी आपका, दोनों थ्योरम्स आपके क्या होते हैं, प्रूफ होते हैं। अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं इसको भी सेम यहाँ पर प्रोसेसिंग करते हैं, इसकी सेकंड थ्योरम में अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे आप देखोगे आप इसका, तो हम इंटू है तो इंटू को साथ में रखेंगे हम यहाँ पर, ये आएगा x डॉट बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बीच में यहाँ प्लस है, इसका इसके साथ करेंगे a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 के है। अब देखो यहाँ पे a और a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा 0 इंटू बी हो जाएगा, फिर ये प्लस, इसी तरह ये हो जाएगा 0 इंटू ए हो जाएगा इक्वल टू 0, 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा और आपका 0 इक्वल टू 0। इससे ये प्रूफ होता है आपके सेकंड थ्योरम भी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को डिमॉर्गन थ्योरम की दोनों थ्योरम समझ में आ गई होगी। फर्स्ट थ्योरम कैसे हम प्रूफ करते हैं, सेकंड थ्योरम कैसे हम प्रूफ करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है क्या। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोर अबाउट लॉजिक गेट। स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों ने 3 लॉजिक गेट देखा था आप लोगों ने, और वो 3 लॉजिक गेट कौन कौन से थे आपके, और एंड नॉट। अब ये अगर इसको हम लॉजिक गेट को शो करेंगे इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग, जो और का होता है आपका ये साइन होता है आपका, जिसमें से 2 वेरिएबल पास होते हैं, जो रिजल्ट आता है हमारा वो सम में आता है। अगर हम यहाँ पे a प्लस बी पास करते हैं तो रिजल्ट आएगा हमारा a प्लस बी आएगा। इसका एंड में जो होता है, इसका जो लॉजिक गेट होता है और जो साइन होता है इस फॉर्म में होता है। इसमें भी आपकी 2 वेरिएबल वैल्यू पास होती है, 2 से अधिक वैल्यू पास कर सकते हैं, और रिजल्ट क्या था सिंगल फॉर्म में आएगा। मान लीजिए हम 2 वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं a और b दे रहे हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा। जैसे नॉट में क्या होता है कि अगर ये इसका साइन होता है नॉट का, इसमें जो भी वैल्यू पास होती है वो सिंगल वैल्यू पास होती है, और जिसका रिजल्ट आता है उसके कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आता है। तो स्टूडेंट इन्हीं तीनों गेट के कॉम्बिनेशन से आपके और भी कई सारे लॉजिक गेट क्रिएट किए गए हैं। तो चलते हैं उनको देखते हैं वो कौन कौन से डेवलप किए गए या क्रिएट किए गए वो गेट। जैसे पहला आपका है नॉर है। नॉर में क्या होता है, नॉट एंड और, या फिर आपका तो और प्लस नॉट गेट को कम मिला करके आपका नॉर गेट बनता है, या नॉट प्लस आर कह सकते हैं इस तरह। यहाँ पे आपका नंद गेट है। अगर हम नंद गेट की बात करते हैं तो इसमें एंड है, एंड नॉट गेट को मिला करके आपका नंद गेट बनता है, या नॉट प्लस एंड। ओके फ्रेंड्स, एंड फिर इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है एक्स आर होता है, ये एक्सक्लूसिव आर होता है, एंड ये जो आपका होता है एक्सक्लूसिव नॉर होता है, एक्सक्लूसिव नॉर होता है। तो चलते हैं इसे 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। नॉर गेट क्या होता है, नंद गेट क्या होता है, एक्सॉर गेट क्या होते हैं, एंड एक्सनॉर गेट क्या होते हैं।
तो स्टूडेंट्स अगर हम नॉर गेट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें नॉट और दोनों गेटों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको अगर हमें शो करना होगा इस चीज को, तो मान लीजिए अगर हम पहले हम ऑड गेट को लेंगे, हम ऑड गेट से इतना होता है आपका इस पैटर्न को होता है। इसमें से दो वैल्यू पास होती है ए और बी, जो इसका रिजल्ट आता है वो आता है ए प्लस बी के पैटर्न में। अगर इसी को में हम नॉट गेट ऐड कर देते हैं स्टूडेंट, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये हमारा होता है नॉट गेट। इस तरह अगर हम नंद गेट की बात करेंगे स्टूडेंट, तो पहले हम एंड गेट को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, दो वैल्यू को हम यहाँ पे पास करेंगे, या आप इस फिगर को डायरेक्ट बनाना चाहते हो आप डायरेक्ट बना सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस टाइप से। यहाँ पे ये पास कर दो, ये डायरेक्ट ले लेगा यहाँ पर आपका। इस तरीके से यहाँ पे हम अगर इसको भी लेना चाहते हो, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो पहले आप दो वैल्यू पास कराओ आप इसे, फिर यहाँ से आप क्या करो, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा ये, और यहाँ से फिर क्या करो, नॉट को वैल्यू को पास करा दो, तो आपका जो रिजल्ट आएगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये आपका एंड गेट हो जाएगा। तो आप ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग इससे आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ये नंद गेट हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट क्या होता है स्टूडेंट? तो अगर हम एक्सऑर गेट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसको हम इसका अगर पूरे फुल नाम की बात करेंगे तो ये होता है एक्सक्लूसिव गेट। एक्सक्लूसिव आर गेट। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि हम जब भी कोई भी वैल्यू पास कराते तो ट्रू वैल्यू पास कराते 0 एंड 1 की फॉर्म में, बुलियन लॉजिक की फॉर्म में। तो अगर वो दोनों बुलियन लॉजिक की फॉर्म में, अगर जैसे कि अगर 0 को हम इंडिकेट करते हैं लो से और 1 को इंडिकेट करते हैं हाई से, तो अगर दोनों वैल्यू को पास करा रहे ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग, तो दोनों वैल्यू में से अगर कोई भी वैल्यू एक हाई होती है तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, हाई फॉर्म में मिलेगा। मीन्स अगर 0 एंड 1 दोनों में से कोई भी, अगर दोनों में से कोई भी एक अगर 1 आ रहा है तो जो रिजल्ट आएगा हमारा 1 की फॉर्म में आएगा। अगर दोनों सेम है 0 0 है तो रिजल्ट हमारा हमेशा लो की फॉर्म में रहेगा, मीन्स 0 की फॉर्म में रहेगा। अकॉर्डिंग टू अगर हम ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, तो मान लीजिए मैंने x लिया, y लिया, और इसकी अगर हम रिजल्ट की बात करें एक्सऑर की, जो रिजल्ट आएगा एक्सऑर का, जैसे हमने कहा यहाँ पे 0 ये 0 होगा, ये 0 ये 1 होगा, इस तरह यहाँ पर ये, और यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, ये 0 एंड 1 आएगा यहाँ पर। तो अगर हम पहला 0 0 है, जैसे मैंने कहा एक्सऑर में कि अगर दोनों सेम होते हैं, 0 होते हैं, लो फॉर्म में होते हैं, तो रिजल्ट हमारा हमेशा क्या आएगा, लो की फॉर्म में आएगा। ठीक है। अगर दोनों में से जो भी वैल्यू हम इनपुट करा रहे हैं दोनों वेरिएबल्स में, कोई भी अगर हाई है, हाई मतलब 1 है, तो रिजल्ट हमारा हमेशा 1 आएगा। जैसे इसमें भी क्या है, हाई है तो 1 हो जाएगा। ये भी दोनों सेम क्या है आपके 1 1 है, तो ये दोनों अगर हाई हैं तो दोनों, मैंने कहा ना दोनों अगर सेम होते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, लो आता है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ये आपका स्टूडेंट एक्सऑर गेट होता है आपका। और एक्सऑर गेट को अगर हमें इंडिकेट करना होता है, इसका जो लॉजिक गेट कैसे इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट, इसका जो लॉजिक गेट होता है, आप पहले और गेट बनाते हो इस तरीके से, इसमें हम दो वैल्यू को पास कराते हैं, इसी में आप एक और इस तरह से ड्रॉ कर देते हो, ये हो जाता है आपका एक्सऑर गेट। और जिसका रिजल्ट आएगा वो आएगा ए, ये सॉरी एक्सक्लूसिव गेट का साइन होता है आपका, या एक्सऑर गेट का साइन होता है, ये रिजल्ट इसको आएगा।
इस तरह कई सारे इक्वेशन बनते हैं आपके। 0 एक्सक्लूसिव गेट 0 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। 0 एक्सक्लूसिव एक्सॉर गेट 1 करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, हाई की फॉर्म में है। सेम पैटर्न जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सेम वहाँ पे भी है। अगर इसके हम इक्वेशन की बात करेंगे स्टूडेंट, कि यदि आप, तो स्टूडेंट्स ये आपका यहाँ तक एक्सॉर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट हमारा एक्सनॉर गेट है। एक्सनॉर गेट को चलते हैं हम सॉल्व कर जाते हैं, देखते हैं एक्सनॉर गेट होता क्या है। तो स्टूडेंट जैसे अभी आप लोगों ने देखा एक्सॉर गेट में, तो ये भी क्या है, एक्सक्लूसिव नॉर है। इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्सक्लूसिव नॉर। इसका जस्ट आपने एक्सॉर में जो था आपका, उसका जस्ट अपोजिट होता है। उसमें आप लोगों ने देखा कि जो अगर सेम वैल्यू आप इंटर कर रहे हो तो जो रिजल्ट आता था वो क्या होता था आपका, लो फॉर्मेट में होता था। और अगर कोई भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू हाई है तो रिजल्ट हमारा क्या आता था, हाई फॉर्म में आता था। बट यहाँ पे क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है कि अगर दोनों वेरिएबल्स या दोनों वैल्यू सेम है रिजल्ट हमारा हाई आएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक हाई है या लो है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, लो फॉर्म में आएगा। जैसे ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम बताते हैं, तो अगर आप पहले एक्स एंड वाई लोगे, एक्सॉर में अगर हम एक्सनॉर देखेंगे, इसका रिजल्ट देखते हैं तो 0 0 1 1 0 1 0 1, तो ये दोनों सेम है, 2 वैल्यू सेम है, जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हाई फॉर्म में आएगा। और अगर दोनों में से कोई भी एक हाई है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, लो की फॉर्म में आएगा। ये दोनों सेम है इसलिए रिजल्ट इसका क्या आएगा, हाई फॉर्म में आएगा। तो जस्ट इसका एक्सॉर का अपोजिट होता है ये। इसका भी सेम वही तरह से फिगर होता है जैसा मैंने बताया आपको और गेट में, बट इसमें नॉर गेट का भी यूज हो जाता है, तो इसमें नॉट भी यूज हो जाता है। जैसे मैं बताया आपको, और ये बना होता है आपका, और यहाँ पे हम नॉट गेट को भी हम ऐड कर देते हैं और गेट के साथ। और यहाँ पर ये जो फिगर होता है, ये जो सर्किट बना हुआ आपको गेट का, ये आपका एक्सनॉर गेट है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को पूरी गेट कंप्लीट आपको समझ में आ गई होगी, गेट क्या होता है। अब चलते हैं इसकी लास्ट टॉपिक की ओर, देखते हैं इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो है लॉजिक सर्किट। और लॉजिक सर्किट क्या होता है, तो स्टूडेंट्स जब लॉजिक सर्किट इज द सर्किट दैट कैरीज आउट अ सेट ऑफ लॉजिक एक्शन बेस्ड ऑन एन एक्सप्रेशन। मीन्स जो लॉजिक सर्किट होता है एक तरह का सर्किट है जो कि आपको जो भी रिजल्ट प्रोवाइड करता है, एक तरह से लॉजिक एक्शन में रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। और ये जो आपको होता है एक्सप्रेशन पर बेस्ड करता है, जो भी आप लॉजिक इक्वेशन देते हो उनके जो भी एक्सप्रेशन होते हैं उन पर बेस्ड होता है ये सर्किट, ठीक है। तो टू एक्सक्लूड द बुलियन एक्सप्रेशन मीन्स अगर हमें एक्सक्लूड करना होता है बुलियन एक्सप्रेशन को, तो वी आर रिक्वायर अ लॉजिक सर्किट, तो हमें लॉजिक सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है एंड इनपुट वैल्यूज फॉर द वेरिएबल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, और हमें उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू को इनपुट कराना होता है एज अ बुलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो चलते हैं फॉर एग्जांपल लेते हैं और उसके सर्किट को ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे उसकी सर्किट ड्रॉ होगी। तो चलते हैं देखते हैं स्टूडेंट। तो अब पहले अगर हम देखते हैं जो एक इक्वेशन लेते हैं फॉर एग्जांपल में, मान लीजिए आपका ए बी है प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये इक्वेशन है। अब इसका हम थोड़ा सा लॉजिक सर्किट बनाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो पहला हमारा इक्वेशन है में आया हुआ ए डॉट बी, यहाँ डॉट का मतलब क्या होता है, ये किस गेट में यूज किया जाता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड गेट में। तो सबसे पहले हम एंड गेट का बनाएंगे यहाँ पर, और एंड गेट से आप 2 वैल्यू का पास कराओगे। वो 2 वैल्यू क्या है आपका, ए और बी। यहाँ से हम ए और बी को क्या करेंगे, पास कराएंगे। जो रिजल्ट आएगा हमारा वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा। सेम इस तरह दूसरा हम देखेंगे, यहाँ पे आप देखो बी और सी पास हो रहा है, तो हम फिर एक एंड गेट का यूज करेंगे और वहां पे क्या करोगे आप, बी और सी को आप पास कराओगे। तो बी के लिए ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ से हम इसको पास करा देंगे।
बट आप यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हो कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट कब आएगा, जब हम यहाँ पर नॉट गेट का यूज करेंगे। जब नॉट गेट का यूज करेंगे तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट पैटर्न से मतलब फॉरवर्ड करेगा इस गेट से, और यहाँ से सी के अब पैटर्न को हम मतलब कि पास करेंगे इस गेट से। तो अब हमारा जो रिजल्ट आएगा, ये नॉट गेट लग गया बी में, तो ये क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये सी है तो जो एंड गेट के थ्रू पास करना है तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन साइन में हो जाएगा सी। अब दोनों क्या है, ये रिजल्ट आ गया, दोनों क्या हो रहे हैं आपके, प्लस हो रहे हैं। तो प्लस हम किस गेट पे यूज करते हैं, और गेट में यूज करते हैं। हम यहाँ पे और गेट का भी साइन बना देंगे, गेट बनाएंगे। अब यहां से हम इन दोनों सर्किट क्या करेंगे, पास कराएंगे। जैसे ये पास होगा, जो इसका रिजल्ट आएगा आपका, वो आपका आएगा ए डॉट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। यही हमें रिजल्ट चाहिए था, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये सर्किट इस तरह से ड्रॉ होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को लॉजिक सर्किट भी समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेकर के समझाते हैं, चलिए देखते हैं। अनदर एग्जांपल लेते हैं और लॉजिक सर्किट को हम ड्रॉ करते हैं। x प्लस वाई इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई प्लस जेड। इस इक्वेशन को देखते हैं। तो स्टूडेंट पहले में आप देखोगे, पहले की दो वेरिएबल वैल्यू पास हो रही है, और वो क्या है, प्लस में, मतलब कि प्लस इसके लिए यूज होता है और गेट के लिए। हम यहाँ पे और गेट की वैल्यू में पास कराएंगे दो वेरिएबल्स को। ये दो लिया, दोनों को पास कराया, ये x हो गया आपका और ये हो गया आपका y, दोनों पास हो जाएंगे इस सर्किट से। तो इस गेट से तो क्या आएगा आपका रिजल्ट, x प्लस वाई की पैटर्न में आएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट की पैटर्न में है आपका, तो और दोनों क्या है, प्लस की फॉर्म में है। तो फिर हम और गेट को पास कराएंगे यहाँ पर हम, और ये पहले क्या है, एक्स जो पास हो रहा है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट पैटर्न में। कॉम्प्लीमेंट कब आता है, जब आप नॉट गेट यूज करते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नॉट गेट भी लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम वैल्यू क्या करेंगे, पास करा देंगे। और किसकी वैल्यू थी आपकी, एक्स की वैल्यू। जब पास करो तो ये क्या होगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट पास करेगा। वहां पे जेड है, जेड को भी हम पास कराएंगे, कॉम्प्लीमेंट पैटर्न में है तो नॉट गेट लगा करके हम पास करा देंगे। जेड लेंगे तो ये जेड कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब जब दोनों और गेट से पास करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। थर्ड हमारा वाई और जेड है, हम थर्ड की भी क्या है, प्लस में है, इसके लिए हम क्या करेंगे, और गेट का यूज करेंगे हम। यहां से भी इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को हम पास करेंगे, वाई एंड जेड। रिजल्ट हमारा क्या आएगा, प्लस की फॉर्म में आएगा, वाई प्लस जेड। अब देखिए तीनों इक्वेशन आ गए। अब तीनों इक्वेशन किस में, जो तीनों है, जो आप क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। अब तीनों को मल्टीप्लिकेशन लाने के लिए हम क्या करते हैं, किस गेट का यूज करते हैं, एंड गेट का यूज करते हैं। अब तीनों सर्किट को हम क्या करेंगे, इस एंड गेट के थ्रू हम पास कराएंगे यहां से दोनों तीनों सर्किट को। ये तीनों सर्किट पास हुआ, यहाँ से जब फ्लो होगा तो जो रिजल्ट हमारा आएगा क्या आएगा, तीनों का ये एक्स प्लस वाई आएगा, सभी मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे। इस तरीके से आपका एक ये सर्किट बनता है, लॉजिक सर्किट। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, और ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे आपको न्यू चैप्टर में और न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।